اور یہاں آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے چیئرمین نے، میری تنظیم نے، میرے ساتھیوں نے یہاں کی عوام سے کیا تھا، ان وعدوں کو ہم پورا کر سکے۔ میں آپ کو تفصیلات بتانا چاہوں گا کہ اس پرانے علاقے میں تقریباً کوئی 4 لاکھ سکوائر فٹ ہم پیور لگانے جا رہے ہیں، اور تقریباً کوئی 4.5 لاکھ سکوائر فٹ جو ایسفالٹ کارپیٹنگ ہوتی ہے ویئرنگ وغیرہ کرنے کے بعد ڈامر والی سڑک، وہ بنانے جا رہے ہیں۔ تقریباً کوئی 8.5 لاکھ سکوائر فٹ یہاں کی سڑکوں کی مرمت ہوگی، تعمیر ہوگی، جس سے علاقے کا لک انشاءاللہ مکمل طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اس کام کو کرنے سے پہلے تقریباً 20,000 رننگ فٹ جو سیوریج کا کام ہے وہ بھی کیا جائے گا، تاکہ جہاں جہاں لیکیجز ہیں، جہاں جہاں اس طرح کے مسائل ہیں، ان کو ہم حل کر سکیں۔ یہ کام انشاءاللہ جوڑیہ بازار میں ہوگا، بولٹن مارکیٹ میں ہوگا، میٹھا در کے علاقے میں ہوگا، کھارا در کے علاقے میں ہوگا، اور لی مارکیٹ کے علاقے میں ہوگا۔ یہ میری کمٹمنٹ ہے۔ کام کا آغاز آج سے ہو گیا، اور انشاءاللہ میں ہوں، میری تنظیم ہوں، میرے ساتھی ہوں، تمام کے تمام لوگ یہاں پر گاہے بگاہے آتے رہیں گے، اس کی نگرانی کریں گے۔ فہیم یہاں پہ رہتا ہے، یہاں کا یو سی چیئرمین ہے، وہ پرسنلی ان چیزوں کو مانیٹر کرے گا۔ ساجد شاہ یہاں کا وائس چیئرمین ہے، وہ اس کو مانیٹر کرے گا، تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ جو وعدہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے، اس وعدے کو کس طریقے سے وفا کیا جائے، اور وفا نہیں، تیزی کے ساتھ وفا کرنا سب سے اہم چیز ہے ہمارے لیے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنے پارٹی کے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ ہم کام کریں گے۔ جو میرے دوست ہیں لی مارکیٹ کے تاجر یہاں پر آئے ہیں، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ورثہ ہے تو شہر کا، لیکن اس ورثے سے آپ کا کاروبار وابستہ ہے، اور اگر ہمیں اس کاروبار کو تقویت دینی ہے، ہمیں اس کاروبار کو ریوائیو کرنا ہے، اس کو مزید بہتر بنانا ہے، سرکار، انتظامیہ اور آپ تاجر مل کر جب کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ تیزی کے ساتھ وہ کام ہو پائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہوتی مارکیٹ کو ہم نے ریوائیو کیا ہے، جس طریقے سے ہم نے ایمپریس مارکیٹ کو ریوائیو کیا ہے، جس طریقے سے ڈینسو ہال کو ریوائیو کیا ہے، اسی طریقے سے مچھی میانی مارکیٹ کو بھی ریوائیو کرنے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے لی مارکیٹ کو ریوائیو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا، آپ کی مدد ہوگی، تو ہم جو بھی کام کریں گے اس کو کام کو تیزی سے کر پائیں گے، اور کام کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو اس جگہ کو اون کرنا ہوگا، آپ کو اس کی رکھوالی کرنی ہوگی، یہاں کے علاقے کے لوگوں کو رکھوالی کرنی ہوگی، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سڑک بنائیں اور پھر کوئی ادارہ آ کے کھود کے چلے جائے۔ کوئی کہے میں گیس کی لائن ڈال رہا ہوں، کوئی کہے میں بجلی کی لائن ڈال رہا ہوں، کوئی کہے میں پانی کی لائن ڈال رہا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں ان سڑکوں کو بنانے کے لیے، اور رات گئے کوئی آتا ہے اور کھود کے چلے جاتا ہے۔ اس کام کے لیے جو مقامی لوگ ہیں، جو مقامی قیادت ہے، اہل علاقہ ہیں، ان کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، تاکہ ہم ان چیزوں کو اون کر سکیں، اور اون کرتے ہوئے ان تمام کاموں کو مکمل کر سکیں۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کھجور بازار کا کیا حال تھا، جو سڑک سٹی کوٹ سے ادھر آتی ہے اس کا کیا حال تھا، جو بولٹن مارکیٹ کے اطراف کا ایریا تھا اس کا کیا حال تھا۔ آج اسی کے ایم سی نے، اسی پیپلز پارٹی کے منشور کے تحت چلنے والی کے ایم سی نے کام کیا، اور آج ان تمام علاقوں کا لک مختلف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں جو اثاثے ہیں نا، اس پہ ٹورسٹ آتے ہیں دیکھنے کے لیے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ہم نے کبھی ماضی میں ان چیزوں کو پرائیورٹائز نہیں کیا، تو ان کا حال یہ ہو گیا۔ آج سرکار چاہتی ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا، آپ کی کے ایم سی چاہتی ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا، آپ کی پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی مدد فرمائے گا، اور اسی طریقے سے کام کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میں کراچی والوں کو بتانا چاہتا ہوں، میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے قبر اولڈ سٹی کا دورہ بھی کیا۔ اس سال ترقیاتی کاموں پر کے ایم سی کے ذریعے خرچ کرنے کا آپ کو ڈیلی، آپ دیکھ رہے ہیں میں کسی نہ کسی مقام پر جاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ پیسہ کس طریقے سے خرچ کرنے جا رہے ہیں، کن پروجیکٹ کے اوپر خرچ کر انشاءاللہ تکمیل کی طرف لے کے جائیں گے۔ جو لیاری کے دوست میرے پاس بیٹھے ہیں یہاں پہ، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کے لیے 3 بڑے منصوبے۔ پہلی چیز، اوور آل جو آپ کے ماسٹر پلان کے تحت آپ کے پمپنگ سٹیشنز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے،
اس کے اوپر 5 ارب रुपए मंजूर कर दिए वजीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर, और उसके ऊपर इंशाअल्लाह आइंदा गालिबन 1 माह के अंदर अंदर काम का आगाज कर दिया जाएगा, जिससे आपकी जो गली मोहल्लों के मसले थे उसको हल करने में इंशाअल्लाह हम कामयाब हो पाएंगे। दूसरी चीज, आपकी जो पानी का मसला है, आपके लिए एलिवेटेड जो पानी की लाइन हम लेकर आए थे लहरी नदी से होती हुई, उसकी भी मसाइल हमने हल कर ली है। उसके बजट में एलोकेशन हमने करवा ली है, रिवीजन जो उसकी फंसी हुई थी वो अप्रूव करवा दी है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विजन के मुताबिक, और इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि उसके ऊपर भी काम तेजी से शुरू हो जाएगा। और टारगेट हमने ये रखा है कि जून जुलाई तक इस काम को मुकम्मल करें, ताकि डेडिकेटेड 10 MJD यानी कि 1 करोड़ गैलन डेली पानी हम लियारी वालों को दे सके, ताकि एक पानी का देरीना मसला आप दोस्तों का हल हो सके। और तीसरी चीज, जो लियारी से पीछे की तरफ से रास्ता गार्डन की तरफ जाता है मिर्जा आदम खान रोड, उसको भी हमने असरन और तामीर का फैसला कर लिया है, और इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी अगले माह 1.5 माह के अंदर प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद काम का आगाज करा देंगे, जो कि एक ऑल्टरनेट होगा कि आपको लियारी के बीचों बीच नहीं जाना पड़ेगा, आपको बाहर से रास्ता मिलेगा। जिनको गार्डन की तरफ जाना है वो डायरेक्टली गार्डन की तरफ चले जाएंगे, जिनको चाकीवाड़ा रोड पर आना है वो चाकीवाड़ा रोड पर आ जाएंगे, और जिनको मौरीपुर की तरफ जाना है वो गार्डन की साइड से उस सड़क को इस्तेमाल करते हुए सीधा बारो बार मौरीपुर रोड पर चले जाएंगे। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये फिंगर टिप्स पे इसलिए कि हम यहाँ के लोग हैं, ये लोग हमारे हैं, और इन लोगों को ओन करना, कराची के तमाम मसाइल को ओन करना, और मसाइल को ओन करते हुए उनका हल तलाश करना हमारी जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ये बिलावल साहब का वादा है, आसिफ जरदारी साहब का वादा है आपसे, कि पीपल्स पार्टी ने अपने नुमाइंदों के जरिए अपने मंशूर में जो जो चीज कही है, जो चीज लिखी है, उसकी अमल दरामद के लिए हम सब तगदो करते रहेंगे, मिलकर काम करते रहेंगे, ताकि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, सूबाए सिंध के लिए और हमारे प्यारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मजीद बेहतर फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिए भुट्टो, जिए आवाम, जीवे जीवे पाकिस्तान। जी सवाल जवाब है तो बताइए जी। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा, K4 ऑगमेंटेशन का काम जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है, वर्ल्ड बैंक के तमाम ताल्लुकात जो है वो दूर कर दिए हैं वाटर कॉरपोरेशन ने, तो कब तक ये काम जो है मुकम्मल हो जाएगा, इस हवाले से बताइएगा। ये हमारे दोस्त सुलेमान सआदत भाई का सवाल था, वो बीमार हैं इसलिए आ नहीं सके। और मेरा सवाल ये है कि वाटर कॉरपोरेशन के मुकदमात अब वाटर कॉरपोरेशन की अदालत में सुने जाएंगे, तो ट्राइब्यूनल का काम जो है कहाँ तक पहुँचा है, ऑपरेशनल करने के लिए कितनी तैयारियाँ हैं? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए, K4 ऑगमेंटेशन, हर काम जब आप करने जाते हैं ना, जो लोग काम नहीं करते उनको कोई रुकावट नहीं होती, जो लोग काम करते हैं उनको रुकावट का रोज सामना करना पड़ता है। तो जब आप मैदान अमल में आते हैं, रुकावटें आती हैं, आपको रुकावटों को फेस करना पड़ता है। मुझे दुख ये होता है कि जो भी मसला आया था उस मसले को हमने रिजॉल्व कर लिया और काम स्टार्ट कर दिया। जुमे के रोज काम वापस स्टार्ट हो चुका है। बदकिस्मती के साथ कल मैं एक मीडिया हाउस है उसकी खबर देख रहा था, उन्होंने कहा जी काम को बंद कर दिया गया है। ये जो इस तरह की खबरें फैलाई जाती है ना, वो शहरियों के अंदर नाउमीदी को जन्म देती हैं। मैं डेली कोशिश करता हूं लोगों को उम्मीद दिलाऊं कि हाँ यार काम हो रहा है, काम हो रहा है, काम हो रहा है, आपको काम पर लेके जाता हूं। 4 कदम आगे बढ़ते हैं, इस तरह की खबरें फैला के मनफी प्रोपेगेंडा करके 8 कदम पीछे हो जाते हैं। तो काम स्टार्ट कर दिया है, उसके जो मसाइल थे उनको हल कर लिया है, और सिर्फ यूनिवर्सिटी रोड वाला नहीं, R1, R2, R3, R4 जो कि 265 MJD कराची की गली मोहल्लों के अंदर लेकर आएगी, उसकी भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि कराची वालों का ये जो देरीना मसला है पानी का, इसको हम हल कर सके। 71 अरब रुपए हैं जो हम खर्च करने जा रहे हैं पानी की लाइंस की रिप्लेसमेंट और इंप्रूवमेंट के लिए। तमाम मुश्किलात, तमाम रुकावटों के बावजूद कोई थपकी तो नहीं देता, रोज इल्जामात लगते हैं, धमकियां आती हैं कि तुम काम क्यों कर रहे हो, लेकिन मैं बताता रहूं आपको कि बिलावल साहब का क्लियर विजन है, मुराद अली शाह साहब का क्लियर विजन है कि हाँ यार ये पानी लोगों का बुनियादी हक है, ये पानी पहुंचाना है, और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के ऊपर हम तेजी के साथ काम करके देंगे। दूसरी चीज जो आपने कही थी, वाटर ट्राइब्यूनल, कराची का एक अहम मसला यह है कि कराची में पानी की चोरी होती है, इलीगल वाटर कनेक्शन होते हैं, जिसका नुकसान एक आम शहरी को, आम कराची वाले को होता है।
जब वाटर बोर्ड, वाटर इंतजामिया कार्रवाई करती है तो कार्रवाई जो है वो पुलिस के जरिए होती है और वो नॉर्मल अदालत के अंदर केसेस जाते हैं जो कि सुस्त रवि का शिकार होते हैं। तो हमने फैसला ये किया कि हम स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे, इसके लिए स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाएंगे जहां पे जज साहब बैठ के हंगामी बुनियादों पर केसेस को सुनेंगे और जहां पानी की चोरी होगी उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जहां पानी का कनेक्शन जाली होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी और सरकारी अफराद जो इसमें मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ भी। तो हमने ट्राइब्यूनल के लिए कानून साजी करने की जरूरत थी, कर ली, असेंबली से पास कराया। जज साहब को अपॉइंट करना था जो चीफ जस्टिस साहब की मशावरत के साथ होना था, जज साहब को तैनात कर दिया गया, उनके स्टाफ को तैनात कर दिया गया। फिर उस कोर्ट को बनाने के लिए उसकी इमारत को तामीर करना था, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को तामीर करना था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने तामीर कर लिया है। अब उसका इफ्तिताह करना है। मैंने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा है कि वो टाइम दे दें, चूंकि ट्राइब्यूनल है और ये जुडिशल मामला है तो हम इसको सरकारी उसमें नहीं लाना चाहते। तो मैं चाहता हूं कि चीफ जस्टिस साहब इसका इफ्तिताह करें। तो मैं पूरी उम्मीद हूं इंशाअल्लाह कि आइंदा चंद रोज में चीफ जस्टिस साहब इसका इफ्तिताह कर लेंगे। मैं उनके साथ मौजूद हूंगा इफ्तिताह में, जॉइंटली इसका इफ्तिताह कर लेंगे। उसके बाद उस ट्राइब्यूनल को फाल बना दिया जाएगा। फिर मैं उम्मीद करता हूं कि जिन जिन लोगों ने यजीद वाला काम किया ना, पानी चुराने का, पानी रोकने का, चाहे वो हमारी सफों में हो किसी और की सफों में हो, उनके खिलाफ कार्रवाई और ठोक बजा के कार्रवाई हो। तो इंशाअल्लाह वो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और करके आपको इंशाअल्लाह दिखाएंगे। जी फरीद भाई। अच्छा मेयर साहब, ये बता दें कि जब से आपने मेयर का ओहदा संभाला है तो शहर की हालत में वाज़ेह तौर पर फर्क आ गया है। आप उन जगहों पे भी काम कर रहे हैं जहाँ कीमती का डोमेन नहीं है, जबकि वहाँ पर टाउन के इख्तियार के काम करें। लेकिन मेयर साहब, आप काम करते हैं मरकजी सड़कों पे, बड़ी मार्केटें जो है उनको बनवा रहे हैं आप, पार्क आपने बनवा दिए, सब कुछ कर दिया, लोगों को सहूलियात हासिल हो गई। लेकिन वो वक्त कब आएगा जो टाउन है, शहर के 25 टाउन है, उनकी सूरत-ए-हाल इंतहाई ख़राब है। 25 के 25 टाउन की अगर हम बात कर लें तो 246 यूसीओ की हालत ऐसी है कि कराची जैसे पसमानदा शहर का मंजर पेश कर रहा हो। तो जब टाउन है, जिला बस्ती की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है, उनको पैसे भी मिले हुए, सुई गैस की जानिब से काम नहीं किया जा रहा। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये है कि केपीके के वज़ीर आला 2 दिन से सिंध में मौजूद हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से उनको खुशामदीद भी किया गया, तोहफे भी पेश किए गए, लेकिन उनकी जानिब से 2 रोज से मुसलसल कहा जा रहा है कि सिंध में जो हुकूमत है और जो पाकिस्तान में हुकूमत है गैर कानूनी है, जाली मैंडेट पे आई है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अच्छा, आपने जहाँ टाउन्स की बात की ना, उसके मैं आपको एक मशवरा दूंगा। ये सीधा हाथ है, ये उल्टा हाथ है, दोनों को यूं उठाएं और दुआ करें, और कुछ नहीं मैं कह सकता। देखें, मेरी सोच ये है कि इंसान के पास अगर 2 रुपए भी है ना, वो 2 रुपए लगाए, लोगों को काम होता हुआ नजर आए। ये नहीं हो सकता कि आप इख्तिदार पर बराजमान हो, आपका करोड़ों अरबों रुपए का बजट हो, वो बजट आपको आपकी हुकूमत दे रही हो, उसके बाद आप गैस कंपनी से अरबों करोड़ रुपए कटिंग की मद में ले लें और उसके बाद आप कहें मेरे पास इख्तियारात और वसाइल नहीं है लोगों के मसाइल हल करने के लिए। मैं समझता हूं मैं बड़ा। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप इस वक्त आप मुलाहिजा कर रहे थे मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ओल्ड सिटी का भी दौरा किया। उन्होंने कहा 8.5 लाख स्क्वायर फीट रोड की मरम्मत की जाएगी, सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के हवाले से भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये मेरी कमिटमेंट है कि काम का आगाज़ आज से हो जाएगा, जो वादा बिलावल भुट्टो ने किया वो हम पूरा करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ताजरों के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ताजरों का साथ चाहिए जिससे काम में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि अगर आपकी मदद होगी तो काम करने में आसानी होगी। मेयर कराची बैरिस्टर वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कुछ देर कबल ओल्ड सिटी का दौरा भी किया और इस हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 8.5 लाख स्क्वायर फीट रोड्स की मरम्मत भी की जाएगी। सीवरेज के निज़ाम के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि सीवरेज के निज़ाम में भी बेहतरी लाएंगे। उन्होंने कहा कि ये आपसे मेरी कमिटमेंट है कि हम रोडों के हवाले से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो वादा बिलावल भुट्टो ने किया हम उस पर काम करेंगे।